Santosh ji, good evening. Good evening. So chaliye, scintillating Saturday, again a wonderful evening. All of us wait for this weekend to come, and of course today we have our very own family member, Mr. Bhamri, performing. So I know all of you are waiting, so let me just begin. So उनके अंदाज में तो मैं नहीं बोल सकती, बिल्कुल वो काम मैं मिस्टर भामरी पे छोड़ूंगी. So like all of you know, he is such a fan of देव आनंद साहब एंड पूरी उनके अदाकारी वगैरह मिस्टर भामरी ही फॉलो करेंगे. बट उनका एक डायलॉग जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि आज का टॉपिक है ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी देव आनंद. सो ये तो सो लाइक आई सेड, उनका एक डायलॉग देवानंद जी का, ना सुख है ना दुख है, ना दीन है ना दुनिया, ना इंसान ना भगवान, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, सिर्फ मैं, आपका अपना देवानंद. So, thank you, very beautiful, beautiful. Thank you. So, इसको पंजाबी में कहते हैं तुसी पहुंच गए. अब मैं उस अदा में नहीं बोल पाई जैसे आप बोलते शायद मिस्टर भामरी. नहीं बहुत अच्छा बोला. Whatever it is. नहीं जी, तुसी छा गए हो, तुसी छा गए हो. थैंक यू जी, थैंक यू. So देवानंद जी ये भी कहते थे, if you are a creative person then your mind gets sharper with age, and my mind is very sharp and I'm happy for that. And we all know that उनका नाम था एवरग्रीन देवानंद. वो कभी ओल्ड हुए ही नहीं, वो उसी अंदाज में चलते रहे जैसे वो अपने यंग डेज में चलते रहे. एंड ही वाज सो डेबोनेयर एंड एवरग्रीन. यही दो शब्द हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम देवानंद की बात करते हैं. And he was one of the greatest and the most influential actors of the Indian cinema. He was born as Dharam Devdutt Pishorimal Anand, but we know him as Devanand. And उसका जो स्टाइल था, जो उनका पफ था, अंदाज से वो बोलते थे, iconic that people followed him, especially the men folk जो कॉलेज में थे, जो उसमें थे. आई थिंक हर एक जनों ने वो पफ बनाया और उस अंदाज में बोलने की कोशिश करी. हाँ बिल्कुल. तो कुछ और देवानंद के बारे में. he was, as you all know, he was an Indian film actor, writer, director, producer and a comedian, and known for his notable works in the history of Indian cinema. The most romantic hero of Hindi cinema, whose career spanned 6 decades and whose romancing skills set millions of female hearts aflutter, including my mom's. मैं बचपन से शायद अभी तक मम्मी से सिर्फ वो मम्मी बस देवानंद को देखती and she just kind of, oh Devanand, my Devanand, and till date I always see her doing that. So really I admire her. I also admire her. Well, so to enthrall us with his unmatched rendering of timeless melodies, we welcome today our one and only Mr. Vijay Bhamri. And I know आप सब Mr. Bhamri को अच्छे से जानते हैं, but जो इनका छोटा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. So Mr. Vijay Bhamri is the director of Amrit Foundation in Rishikesh and coordinator of Senior Citizens Federation in Gurugram. He was born in Sri Lanka in a Punjabi family and completed his education in Delhi. He worked for 30 years in Sarabhai Chemicals and retired as the North India manager. He also has 8 years of work experience in the USA. Bhamri ji, as you all know, is a very, very passionate singer and a devotee of Krishna consciousness. And as you all know, he has full support of his wife, and for him, his wife means the world. And Mrs. Bhamri का भी हमेशा पूरा टोटल सपोर्ट रहता है, बल्कि शायद अगर वो कुछ भूल भी जाए तो मिसेस भामरी, नहीं आप बोलो, आप ये करो, and she keeps guiding him and is always there. अभी तक लेफ्ट साइड पे थी, आज से जैसे मैंने कहा राइट साइड पे है वो उनके, बट है हमेशा उनके साथ ही. एंड मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, मुझे शायद वो पल कभी नहीं भूलेगा जब मैंने पहली बार मिस्टर एंड मिसेस भामरी को देखा था. And we were in a senior federation meet
एंड कुछ ऐसे म्यूजिकल इवनिंग चल रही थी एंड सबको स्टॉप करके मिस्टर भामरी टोल्ड द म्यूजिशियन कि थोड़े रुको, मैं एक गाना गाता हूँ एंड या ये वाला गाना गाओ। एंड वो पूरे स्टाइल में माइक लेके बिल्कुल मिसेस भामरी वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट एंड वो आके अपने नीज पे बैठ गए, उन्होंने ज़ोहर ज़बी वाला गाना गाया उनके लिए एंड पूरे अंदाज में सिर्फ मिसेस भामरी को देख के। So that was such a beautiful moment which I don't think I will ever forget. So with that, I will now welcome Mr. and Mrs. Bhamri for today's scintillating Saturday evening. Thank you. Thank you very much, Ritu ji. It is all your affection, love and care for us that we are here today. And I have to thank my Imova family members, especially people who have been with us right from the day one, starting from Mona ji, Rashmi ji, Parveen madam, कर्नल शर्मा, पुरी साहब, ये सब लोगों ने इतना अफेक्शन दिया कि और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने सोचा हर रोज एक नया गाना तैयार करूं, हर रोज एक नया गाना तैयार करूं। तो ये जितना कुछ आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल अफेक्शन ऑफ इमोमा फैमिली। अभी भी जो नए लोग आए हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम ये समय ऐसा ही चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कोरोना को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपका लव अफेक्शन अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब काफी कुछ रितु जी ने बहुत अच्छा बोल दिया देवानंद सर के बारे में। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। देवानंद जी को पॉपुलरली नोन एज देव साहब कहा करते थे इंडस्ट्री में। ही वॉज फेमस एज देव साहब, कोई भी उनको देवानंद नहीं बोलता था, वो एक आदत सी पड़ जाती है। ही वॉज नोन एज देव साहब। He was born in गुरदासपुर, जो पंजाब में एक अच्छा खासा विलेज है। 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म हुआ और he acted as a hero, जैसे रितु जी ने बताया, for over 60 years, which is a record in 106 movies from 1946 to 2005. And आप सबको मालूम ही होगा फिल्म फेयर अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, एंड ही गाइड जो उन्होंने बनाई थी, दैट वाज द फर्स्ट मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। देव साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपको ना मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, कि देव साहब अपनी मदर की मेडिसिन लेने अमृतसर जाया करते थे अपने दोस्त के साथ। गोल्डन टेम्पल विजिट किया, वापस आके तो आदमी सोचता कुछ पिया जाए, तो उन्होंने एक जूस का गिलास के लिए ऑर्डर करते थे, एक कप के लिए अपने दोस्त के लिए। और वहां पे वो जूस वाले ने उनको अच्छी तरह देखा और कहा, साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कहता है, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जरा इसको अच्छी तरह सुन लीजिए, कि साहब आपके माथे की लकीरें कहती हैं कि आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब जो देवानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, जो मैं लास्ट टाइम भी शो करता हूं सबको, रोमांसिंग विद लाइफ, इसमें वो लिखते हैं कि जब आप लिखने बैठो, अपने बारे में लिखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। लो भाई, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? आसान इसलिए कि आपकी लाइफ में जो घटा वो लिख देना, और मुश्किल इसलिए है कि उसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू दुनिया के सामने आ जाते हैं। देवानंद जी के ऊपर कुछ क्रिटिक्स ने इल्जाम लगाया कि वो सारा फोकस अपने ऊपर, जो पिक्चर बनती है तो अपने ऊपर रखते हैं, जिससे उनकी अपनी बुक, जिसको उन्होंने अपनी बुक में क्लैरिफाई किया, वो ऐसा क्लैरिफाई करते हैं कि अपने लाखों फैंस के मन में जो मेरा एक डीटी का इमेज बना हुआ है, डीटी मीन ईश देवता का इमेज बना हुआ है, मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं, उनके दिलों में बेस्ट रखना चाहता हूं। इसका लिविंग एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले, अगर आप इंडियन आइडल देखते होंगे तो उसमें एक राइटर आया था, मनोज मुंतशिर। उनसे ये पूछा गया कि आप देवानंद जी के बारे में बोलो, तो उन्होंने कहा कि मैं देवानंद जी से सिर्फ एक बार मिला और मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं कि मैं उन्हें, जैसे कि कोई एक ग्रीक गॉड होता है,
मैं ग्रेट गॉड से मिल लिया, उसके इसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि अगर उन्होंने अपनी किताब में ऑनर्स सबमिट किया है तो बड़े बड़े अच्छे राइटर्स ने एक्नॉलेज भी। चलिए, ये हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आइए अब हम उनके कुछ फेमस गाने, फिल्मों के सॉन्ग्स का आनंद लेते हैं। ये मैंने बड़ी मेहनत से अपनी ग्रैंड डॉटर्स और डॉटर की स्पोर्ट से मेडले ऑफ सॉन्ग्स बनाया है। और ये आपने पिक्चर जरूर देखी होगी, मुनीम जी 1955। और जो स्टेज है जो फिल्म के अंदर, जीवन के सफर मेरा चढ़ जाने को और दे जाते हैं तन्हाई नजर पाने को। जीवन के सफर मेरा ही चढ़ जाने को और दे जाते हैं तन्हाई नजर पाने को। ये रूप की दौलत वाले जब सुनते हैं दिल के ताने, ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के ताने, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं चढ़ जाने को और दे जाते हैं तन्हाई में तड़पाने को। चलिए, अब मेडले सॉन्ग के दूसरा नंबर है। बहुत खूब आमिर साहब, वंडरफुल। ये आप सबने देखी होगी पुरी साहब, हम दोनों। वेरी गुड। हमने तो हम तीनों भी देखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें देवानंद जी का ये कैरियर का बेस्ट सॉन्ग है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं पीछे नहीं देखा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। थैंक यू। नाउ लेट अस कम टू द मेडले में थर्ड सॉन्ग। मैं इसको हल्के इसलिए कर रहा हूँ कि ये सॉन्ग आपने पहले सुन रखे हैं।
अगला गीत फिल्म 9-2-11 से है। म्यूजिक इसमें एस.डी. बर्मन जी का है और गाने वाले हेमंत जी है। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से ही लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से ही लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Thank you very much. Now we're coming to the last and the fourth song of the medley. Wonderful, beautiful. ये आपने ये भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मजा आ गया सर, मजा आ रहा है। ये पेइंग गेस्ट में 1957 की पिक्चर है और संगीत उन्हीं का है, उनके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन। गाना सुनिए। बाइसिकल चला रहे हैं भाई। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के जल्दी करके भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के जल्दी ये करके भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के जल्दी बन के भला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। बहुत अच्छे भामरी जी, बहुत अच्छे। Now we come to the end of this medley songs and इसको स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, बीच में स्टोरीज चलती रहेंगी। एक दिन प्रभात स्टूडियो में देव साहब की मुलाकात हो गई गुरुदत्त से, जो अनदर लेजेंड, एंड बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स। और इन्होंने
स्पॉन्टेनियसली कहते हैं डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे काम करेंगे फिल्मों में। इन दोनों ने साथ साथ 7 फिल्में जो सभी बॉक्स ऑफिस के फिट हुई। देव साहब की 1958 की सुपर हिट फिल्म थी काला पानी। इस फिल्म की रिलीज के बाद ही उनके काले रंग का सूट पहनने पर कोर्ट द्वारा बैन लग गया। क्यों? क्योंकि इसको देखकर जब भी वो किसी काला कोट पहनकर किसी पब्लिक फंक्शन में जाते थे तो लड़कियां देखकर पागल हो जाती थी। तो और यहां तक भी रिपोर्टेड है कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी किया। तो कोर्ट ने ऑर्डर देके ये सूट बैन कर दिया देवानंद के ऊपर। आइए अब गुरुदत्त बैनर की एक फिल्म CID का गाना पेश करता हूं। ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है। और आई रिक्वेस्ट माय डायरेक्टर ऑल्सो टू पार्टिसिपेट बिकॉज एक्चुअल में उनकी वाइफ मोना जी ने इनके साथ गाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गाना आप ध्यान से सुनिए। आंखों म्यूजिक में ओपी नैयर का था। सॉरी, ये मैं दूसरी लाइन पढ़ गई। यूर राइट, यूर राइट। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों में एक्सक्यूज मी करो। नहीं वो कुछ नहीं, बैटरी खत्म हुई लग रही। सॉरी, थोड़ी सी रुकावट। नहीं वो उसको बीच छोटे को हटा दो ना। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते। रुकावट के लिए कोई खेद नहीं है। अब इसको ऑन करो। नहीं पर कैसे होगा? थोड़ा सा वो बैटरी का अब टेक्निकली इतने साउंड तो है नहीं। बड़ी कोशिश करते रहे कि ना कुछ हो, लेकिन भगवान परीक्षा लेते रहते हैं कि आपको घमंड ना हो। मामनी साहब मफलर भी पालो देवानंदा। हाँ जी, है। पर पहले यू शुड लुक लाइक देवानंद। आज भट्टाचार्य ने भी पहना हुआ है मफलर। ओह वाह चावड़ा साहब, वेरी गुड। अभी ना कुछ लग रहा है कि बैटरी ना इसके कम हो गई, तो ये चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ स्टार्ट। वही आंखों में डाल दो सीधा। कैसे? यहाँ पे पहले वो कर लेंगे। डाल के यार देवानंद का गाना बजा। देवानंद मुझे कॉपी बात कहीं ये वडो माण्हू आहे, वडी पोस्ट ते होगा। ॿुधाई न शुरू कर। गुड़गांव में रहना है। ये अभी तो हाँ गुड़गांव सब अलग अलग जगह का है ना। ये ना कि खाली जगह भोपाल जाए। पूरा हो गया। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों में
हो इसलिए ऐसी क्या बात है, ये हाल कैसे तुम्हारा हो गया। आंखों ही आंखों पे इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में हमको है सब पता दिल में जो चोट है, ये चोट हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इसको भी हाँ जी, आगे काफी लंबा है जी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई। बहुत ही अच्छा। थैंक यू थैंक यू वंडरफुल। भामरी जी बहुत अच्छा। थैंक यू सर जी। हम कलाकार हैं तो मिसेस भामरी भी कम नहीं है। मिसेस भामरी मिसेस भामरी बहुत सुर में है, आप बहुत सुर में, बहुत अच्छा। रमा जी नमस्कार। हाँ जी सर। बढ़िया बढ़िया जुगलबंदी, बहुत बढ़िया हाँ जुगलबंदी। बिल्कुल, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कहाँ चली चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग पे थैंक साहब एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थोड़ा सा बहुत बढ़िया भाभी जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू सर। thank you इस तरह। छा गए तुसी। अच्छा कैसे वही थोड़ा सा फिर टेक्निकल इशू थोड़ा ठीक सा कर रहे हमारा हैं। कहीं लग जाता है हाथ, और वो ये न्यूली ट्रेंड है मिसेस भामरी, तो थोड़ा हाँ सा जी, थोड़ा गलती से माफ करना वैसे। हाँ शुरू हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट सॉन्ग जब प्यार किसी से होता है 1961, और इसमें जो है मैं गलती से बोल गया मैं शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, ये दुआई तो नहीं मांगी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया आप
बाहों बैठे प्यार मांगा था, उदारी तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। मेरा हक था तेरी आंखों की झलक थी पर, मेरा हक था तेरी आंखों की झलक थी पर, जीत अपनी पराई तो नहीं मांगी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी। Wonderful, sir. Wonderful. Very good. सुंदर, बहुत सुंदर। Very good. Very good. Thank you sir, thank you very much. Very good, हामिद जी। अब Very देखिए, हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, सारे गाने इतने बढ़िया हैं। हाँ, देव साहब ने सबसे पहले अभिनेत्री सुरैया के साथ डेट शुरू किया। इन दोनों के प्यार के किस्से बहुत चर्चा में रहे और सभी को मालूम होगा, लेकिन एज द लक वुड हैव बीन, और होता अच्छे के लिए ही है, सुरैया के माता पिता ने मना कर दिया। उसको उन्होंने अपने जहन में रख दिया कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। सुरैया ने फिर उसके बाद शादी ही नहीं की। देखिए आप, देखिए लाइफ का ऊपर नीचे कैसे होता है। देवानंद जी ने 1954 में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान चेतन आनंद प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के ब्रेक करूंगा और सेलिब्रेशन टुक प्लेस। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कर्नल शर्मा जी, कर्नल परवीन शर्मा जी, to speak something more about Devanand. Over to Colonel Sharma. Okay. So The whole program was very good. Very good. अभी चल रहा है सर? हाँ, अभी चल रहा है। आपका खत्म हुआ है, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। Thank you sir, thank you. Okay. So I'll talk about his education and his connection with Pakistan hierarchy. गुरदासपुर इज 110 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर। तो उनके पापा गुरदासपुर में बड़े अच्छे खासे वकील थे, तो उन्हें बोला मेरा जो सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का है, इसमें अच्छी एजुकेशन करानी है, तो इसको प्लान कर लो। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वहां पे पढ़ने के लिए भेजा। तो उनके क्लासमेट थी कामनी कौशल, जो अभी भी शी इज अलाइव एंड नंबर 2 एल्डेस्ट लिविंग बॉलीवुड पर्सनालिटी। नंबर 1 पे हैं दिलीप कुमार जी, इज गोइंग टू बी 99 एंड कामनी कौशल इज 98 प्लस, और देवानंद जी भी आज जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन 98 इयर्स। तो वो तो क्लासमेट थी, और उनके सीनियर बैच में थे उनके भाई चेतन आनंद, IAS जौहर एंड खुशवंत सिंह। तो ये वहाँ के छोटे मोटे किस्से जो सारे खुशवंत सिंह ने अपनी एक बुक में लिखे हैं। बुक का नाम है न्यू दिल्ली। उसमें अलग अलग पोर्शन में एक पूरा पोर्शन डेडिकेटेड है देवानंद पे और उनके गवर्नमेंट कॉलेज के क्लासमेट्स पे। नाउ दिस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इज समथिंग नॉट ऑर्डिनरी। इट हैज प्रोड्यूस्ड प्राइम मिनिस्टर्स, 2 नोबेल प्राइज विनर्स, नंबर ऑफ पोएट्स, क्रिकेटर रमीज राजा एंड बहुत कुछ, एकेडमिशियंस। एंड वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वाले अपने आप को रेबियन बोलते हैं, RABIAN, रेबियन। जैसे सिनारियन बोलता है कोई, कोलंबियन बोलते हैं, तो वो रेबियन बोलते हैं अपने आप को। अब मैं बताता हूँ मेन बात। 1999 में वाजपेयी जी जब बस भर के लेके गए थे लाहौर, उसमें सबसे सेलिब्रेटेड बंदे थे देवानंद जी थे। तो जहां जाते भीड़ उमड़ पड़ती, उसके 2 रीजन है। एक तो वो नियर बाई एरिया के थे एज पर लोकल क्राउड के, और गुरदासपुर दा जी। एंड सेकंड वाज ही हैड स्टडीड इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के। लाहौर में 3 साल ये लड़का घूमा फिरा है, तो ही इज वन ऑफ आवर किन्स। तो बड़ी उनकी पॉपुलरिटी हुई। देन ही शेड्यूल्ड अ विजिट टू हिज कॉलेज
एल्मा मैटर एज दे यूज्ड टू कॉल इट। तो एल्मा मैटर में अपनी विजिट उन्होंने करी, इट्स वेरी पॉपुलर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उनसे 25 साल यंगर हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे। तो ही वाज आल्सो देयर एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑफ रेवियंस एंड दे सैट इन ए पार्क फॉर 10 मिनट्स इन ए गार्डन पार्क, उन्हें गार्डन बेंच के ऊपर बैठे रहे 10-15 मिनट बाद। एंड 12 years later when Devanand died in 2011, बड़ी अच्छी ओबिचुरी लिखी है। उस समय भी नवाज शरीफ घूम फिर के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे पाकिस्तान के। बड़ी अच्छी ओबिचुरी लिखी दोबारा उन्होंने देवानंद पे, called him his friend. I have lost a friend. I call him friend because he studied in same college, government college where I studied. So this is how it is. And Devanand, the popularity immense. Back to you, Mamri ji. ओके सर, थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत अच्छा आपने बता दिया, ये उनकी बुक में नहीं है। ओके, वेल डिस्क्राइब्ड। हाँ जी, हाँ जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस एज यूजुअल मिस्टर कर्नल जी। हाँ जी, वेल नरेटेड, सो नाइस, थैंक्स अ लॉट। कर्नल साहब, यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरीथिंग, तो आपका तो बनता था बोलना। आपके बिना मजा नहीं आता, बहुत अच्छा हुआ आप भी आए। So nice जी, इनका बड़प्पन है बाबरी जी का। He gave me a slot and I did some very nice। बोलने का ढंग भी तो बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन दी है साहब आपने देवानंद साहब के बारे में, वाकई में गजबी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड अब चलते हैं देवानंद जी के साथ काम करने के लिए ज्यादातर हीरोइन तैयार हो जाती थी, तो ये उनका मीटिंग हुआ विजयानंद जी के साथ। तो एक स्टोरी मिली विजयानंद जी को, 3 देवियां। तो उसमें ये हुआ कि एक ही स्ट्रोक में 3 हीरोइंस को मोबिलाइज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मूव है। विजयानंद उनका भाई था, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उसका। तो चलिए उस पिक्चर का गाना गाते हैं। 1965 में पहले ये पिक्चर बनी थी, बाद में गाई। चलिए उसका गाना एंजॉय करते हैं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहा, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, तो देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। लहराई आंचल की नाव
चलती नाव से। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, तो देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ तो खड़ी हो और खड़ी आ जाओ। कोई हकीकत कौन तुम बतलाओ, ओ देश तो खड़ी हो और करीब आ जाओ। बाबरी साहब बहुत खूब, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। वो डायरेक्टर साहब नाराज हो रही है, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आवाज ही निकल रही है आपकी। अरे नहीं फर्स्ट क्लास, बहुत ही एंजॉयबल बाबरी जी, बहुत एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। आपका स्टाइल, आपकी एक्सप्रेशन गाने के साथ बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए अब बात करते हैं। भामरी साहब शराबी का नहीं है, इतने अच्छे गाना, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत अच्छा सिलेक्शन। चलिए अब बात करते हैं उनके कैरियर की एक क्लासिक फिल्म, जिसका मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर जो इसमें इन्होंने किताब में लिखा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फिल्म का नाम है गाइड, जिसे इंडिया में नहीं सारी दुनिया में सराहा गया। इस फिल्म के बारे में एक मजेदार किस्सा ये है, फिल्म जब पूरी हो गई तो देखिए साथ साथ कॉम्पिटिटर भी चलते रहते हैं। ये कुछ प्रोड्यूसर्स ने लॉबी बनाई, कुछ क्रिटिक्स ने लॉबी बनाई, इनको मिलके उन्होंने अफवाहें फैला दी कि इसकी फिल्म का जो एंड है वो हीरो को ऐसे कुछ अब अनाप शनाप बना दिया। तो देवानंद जी को जब पता लगा तो उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद जाके
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर इंदिरा गांधी जी से मिल के आता हूँ। वो अपनी फिल्म को लेके साथ गए और वहां पे जाके उन्होंने उनके ऑडिटोरियम में फिल्म को दिखाया और इंदिरा गांधी से पूछा कहीं आपको कुछ ऐसा लगा? उसने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगा। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, काइंडली अप्रूव द फिल्म। आप देखिए कितनी बड़ी फिल्म होने जा रही है और कितनी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए। और इस फिल्म की जो कलरिंग है, फोटोग्राफी है, पाथे कलर की है, विच इज द यूनिक पाथे कलर। ही हैड टू गो टू लंदन टू गेट इट प्रोसेस्ड। अब मैं आपको अब गाइड किया, जब जिक्र आएगा तो फिर डायलॉग्स तो होने ही चाहिए। तो ये डायलॉग बहुत आता था रेडियो सलोन पे, टीवी पे और ये सब। डायलॉग है, माँ मुझे जल्दी से खाना खिला दे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली से, लंदन, पेरिस, कैरो, रोम से जो भी टूरिस्ट आता है यही पूछता है राजू गाइड कहाँ है? माँ एक रोटी गफूर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेल सेड। क्या बात है। रामजी जी ने आपने बोला ये, माय गॉड, थैंक यू। बहुत अच्छा। आपने तो बिल्कुल एक्सेंट नकल कर दिया। हम देवानंद जैसे आवाज। रीता जी जाग के सुनो। जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा बाकी सब अपने आप ही देवानंद बन जाएंगे। एक्शन तुमको और सही करना है यार, थोड़ा अलग अलग। वापस गीता जी उठ के सुनो, अच्छी तरह जाके सुनो, उन्होंने ही बोला है। इसको क्लिक करो। दो 10 मिनट के लिए आप क्लिक कर आगे शुरू। चलिए अब मैं आपको, अगर आपको डायलॉग अच्छा लगा तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट पिक्चर का, जब वो जेल से छूट के आते हैं और उसके बाद वो उनको एक मिलता है गांव में आदमी, उसका नाम है भोला। कुछ याद आया आपको? भोला भोला। तो वो उनको देख के कि कहीं से शहर से आए हैं तो उनसे पूछा, तो शुरू करते हैं। भोला पूछता है आप कहाँ से पधारे हैं साहब? तो उस टाइम तो अभी तक तो राजू गाइड है, तो बोलता है आना जाना अपने हाथ में थोड़ी है दोस्त, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़कर उधर ले जाती है। तंग आकर मैंने किस्मत से पूछा, किस्मत तू क्या चाहती है? किस्मत कहने लगी मनमानी छोड़, मेरी उंगली पकड़कर चलो। मैंने कहा तरास तू, तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ और परसों जाने का। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आवाज है आपकी, बिल्कुल डायलॉग ऐसा लगता है ओरिजिनल डायलॉग है। वेरी गुड। अब तो अपनी मर्जी से लिख लो। आइए अब आगे चलते हैं। हम्म। 1967 में विजयानंद जी का मन हुआ कि एक सस्पेंस थ्रिलर बनाया जाए, तो फिल्म जूल थीफ का आइडिया बना। उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने लगे, तो देवानंद जी कहने लगे चलो सिक्किम चलते हैं, वहां की लोकेशन देखने चले गए। वहां के राजा से मिले और राजा उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। उस टाइम राजा था चोग्याल, और उसने उनको हर मदद की एश्योरेंस दी और अपने कुछ लोग भी उनके साथ दिए कि ये लोग आपकी हर मदद में आपके साथ रहेंगे। टू द एक्सटेंट कि राजा ने अपना महल शूटिंग के लिए ऑफर कर दिया। तो देवानंद जी ने वहीं पे ये गाना प्लान किया जो बहुत फेमस हुआ। लता जी का है, मोना जी आप ध्यान से सुनिए, आपके उसमें है, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली। दिस गाना सॉन्ग वाज प्लान्ड बाय देवानंद। और
क्या हुआ कि फिल्म पूरी होने पर उन्होंने वहां के राजा, अच्छा फिर उसके बाद वो काठमांडू चले गए। काठमांडू में, नेपाल में उनकी शूटिंग हुई। सोल्टी एक रेस्टोरेंट है, वहां की शूटिंग है। और वहां के राजा भी बहुत उससे उन्होंने कहा यू आर माई पर्सनल गेस्ट, आप वो जो भी चीज चाहिए होगी जस्ट गिव मी ए कॉल एंड दैट थिंग विल बी अवेलेबल विद यू एंड माय मैन इज ऑलवेज स्टैंडिंग एट योर सर्विस। फिल्म पूरे होने पर देव साहब ने दोनों को, ये प्रीमियर हुआ था ओडियन में दिल्ली में, तो उनको इनवाइट किया था। हाँ, एक सेकंड, टेक्निकल थोड़ा हो गया है। मैं हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं रुक जाओ 2 मिनट। ऐसी बात में दबा के चली आई, वाह, वेरी गुड। वही बात तो दुहाई है, दुहाई बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। ओ तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, जाए वही बात तो दुहाई है, दुहाई। मोना जी सामने आ जाओ, हाईलाइट। हम तो सामने ही है। अति सुंदर। मोना जी को हाईलाइट करो भाई प्लीज। खत्म, फिनिश। इसको दोबारा रिपीट करो ना, बड़ा अच्छा है। तब तक इनका जो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा गाया था। तो वही गा रहे थे बिल्कुल, बहुत सदी हुई आवाज है साहब आप, बहुत। चलिए, टेक्निकल इशू खत्म हो गया। थैंक यू मोना जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। भाई सॉरी, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। कैरियोके को मोना जी आ जाओ वहाँ पे। नहीं पी कहाँ है? अच्छा, बार नहीं, बस उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। बस एक मिनट चाहिए। प्लीज बियर विद अस। We are not technical people. Please excuse. Yes. सुलह के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, सुलह के गया सपना मेरा। बोला जी अब तो शाम हो गई है। चलिए ठीक हो गया, मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, लवली मोना जी, लवली। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी होठ पाती, कैसे बताऊं किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, लेकर के सोया तेरी यादों में जाना, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला विदाना। बादल चंदन पानी जैसा मेरा प्यार, धड़कन की बीना, सपनों की बीना जली तू,
हरदम ऐसे रोई की गली छोटा सफर हो लंबा सफर हो सोने नगर हो या मेला याद आए मन हो जाए पीर के बीच अकेला पागल चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई इतना मादिल इतना माधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जानू मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आने में रुका पानी में झुका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी देखे कर आया सबसे किनारा पागल चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार इतना मादिल इतना माधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई Very nice, very nice. Thank you. Yeah, very good, Mr. Bhami. Well done. Very nice. Thank you. Thank you. Very nice, Bhamri साहब. बहुत चलिए अच्छा अब ये हरे गाने रामा हरे सुनकर. कृष्ण की इससे सॉरी Very nice. थैंक यू जी वेरी नाइस Thank भावरी you. जी समा बंदता तुसी आज Good going, good going. थैंक यू परवीन जी लव यू थैंक यू वेरी मच Good going. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है. ये जो जूल थी फिल्म बनी थी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है देव साहब और उनकी टीम काठमांडू में एक रेस्टोरेंट उसका नाम है रेस्टोरेंट का बेक आज भी चलता है वहां पे ये यंग लड़के हाशिश गांजा का नशा करते हैं तो इनके साथ एक जर्मन आर्टिस्ट वहां इनको मिला तो उन्होंने कहा चलो हम ड्राइव पे चलते हैं जब ड्राइव पे गए तो इन्होंने देखा कि लोग अपना ओपन में वो रेस्टोरेंट तो है लेकिन ओपन में एक पहाड़ सा बना हुआ है उसके ऊपर बैठ के कोई लेफ्ट बैठा है कोई राइट बैठा है कोई बीच में बैठा है वो बैठ के सब नशा कर रहे हैं अपना अपना देवानंद जी को एक NRI एक इंडियन लड़की स्पॉट हुई अरे ये कहा तो उन्होंने उसको स्पॉट कर लिया और रेस्टोरेंट में जाके जो वेटर्स थे उनसे कहा कि इस लड़की से मेरी मुलाकात कराओ तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल करा जैसे ही वो नशे का पीरियड खत्म हुआ उन्होंने वेट की और वेट करने के बाद उसको लड़की को बोला आपकी वेट कर रही है जैसे वो लड़की आई तो उसका नाम था जसबीर शी वॉज फ्रॉम अमेरिका एंड उससे जब उन्होंने पूछा तो हैरान रह गए उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है मेरे को देखने के लिए तो कुछ डॉलर जो मेरे हाथ में आए वो लेके मैं इनके पास आ गई और मैं अपना मस्त जिंदगी लीड कर रही हूँ तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट का आइडिया उनको मिल गया
जब वो वापस बॉम्बे आए तो उनके फ्रेंड ने एक पार्टी अरेंज करी थी, ये भी कर्ण शर्मा जानते होंगे। अमरजीत नाम का एक दोस्त था उनका, बहुत फेमस। उसने अपने घर में पार्टी रखी थी, तो उस पार्टी में जीनत अमान जो एक मॉडल गर्ल थी उसको भी बुलाया हुआ था। अब ये ही वाज लुकिंग फॉर ए सिस्टर ऑफ देवानंद एंड हीरोइन ऑफ देवानंद। तो हीरोइन तो इनको मिल गई मुमताज। उसके मुमताज ने कहा मैं तो आपकी हीरो नहीं बनूंगी, सिस्टर का रोल नहीं करूंगी। तो उसको उससे कल मुलाकात हुई तो दे बिकेम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो उसके बाद उनको ऑफर किया कि आपको मैं एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। उसके लिए तो एक ब्रेक था फिल्म में, उसने एकदम हाँ कर दी। तो क्योंकि उसमें उनको जसवीर की छवि दिखी कि अगर मैं इस पिक्चर में इसको करता हूँ तो ये रोल ऑफर कर दे। तो फिर ये आप जानते ही हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा ब्रेक था और एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। तो ये मतलब विद टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ तक का हमारा साथ था। अगर आप चाहें तो मैं जॉनी मेरा नाम का एक डायलॉग बोल सकता हूँ। रितु जी है टाइम? हाँ जी श्योर। अच्छा, मैं एक डायलॉग बोल के फिनिश करूंगा। और सिर्फ रितु जी 5 मिनट का काम लगे, 3 मिनट का गाना है और 2 मिनट का डायलॉग। We will have time, Mr. Bhamri. Okay. हमारे पास अभी टाइम, हमारे पास टाइम है अभी और 10 मिनट्स है। ओके, थैंक यू। जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है। उसमें ये हेमा मालिनी को मिलने जाते हैं तो नॉक करते हैं दरवाजे पे, तो वो दरवाजा खुलता है। ये कोई आवाज पीछे से आ रही है, कुणाल जरा। सर थैंक यू। तो हेमा मालिनी जी दरवाजा जरा सा खोल के पूछती हैं कहिए। तो देवानंद जी बोलते हैं दरवाजा खुलने से पहले सोच रहा था किसी बदसूरत से सामना होगा, दरवाजा खुलते ही दंग रह गया। हेमा मालिनी जी बोलती हैं काम की बात करिए और चलते बनिए। देवानंद जी कहते हैं कमाल है, जितनी खूबसूरत शक्ल है उतनी ही बदजुबान भी। एक 5000 का हीरा का मैसेज लाया हूं। हेमा मालिनी बोलती है पैसे वहां पड़े हैं, जल्दी से मैसेज बताइए और पैसे उठाकर चलते बनिए। देवराम साहब को बड़ा बुरा लगता है, बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरा एक 10,000 का मैसेज हीरा को दे दीजिएगा। हीरा को कहिएगा हीरा तेरा काम तो हो गया है, लेकिन हीरे का हीरो जॉनी फंस गया है। लवली लवली। अब मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ देवानंद, मैंने पहले भी एक दफा गाया था, आपको याद होगा, विद एक्टिंग करके बताता हूँ। बड़ा कर दें बाबू आप खड़े होके एक एक्टिंग करो जरा। वो सारा मैं कर लूंगा, इसमें करनी पड़ेगी। हाँ देखता हूँ। इसको उधर कर। नहीं इसके सारे इसके सारे चले प्ले। पल भर के लिए कोई हमें प्यार झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा।
पे खिंची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, ओ काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम ने खूबी रावण को देखा, राम ने खूबी रावण को देखा, खड़े खिड़की पे जोगी इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही, धीरे से लड़े तेरे नैन पड़े, जिस से लड़े तेरे दर्द पड़े, धीरे से लड़े तेरे नैन लड़े, जिस से लड़े तेरे दर्द पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ना कहीं, जरा हाथ कहते मेरी जान कहते मेरी जान कहते, जरा हाथ कहते जब रैन पड़े नहीं रैन पड़े नहीं रैन पड़े जब रैन पड़े, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत पूरी क्यों नहीं है, अपनी भी सूरत पूरी क्यों नहीं है, कभी तू भी ओ कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। Wonderful. Ultimate. La 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 la. अमृत साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्यार पे सारा जीवन, पल पल के प्यार पे सारा जीवन, हमको नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, कभी तू भी हमारा इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। देवानंद की सबको याद दिला दी, अमृत जी, रमा जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज देवानंद फिर से जीवित हो गए लगता है, देवानंद फिर से जीवित हो गए, बहुत बढ़िया। क्या आप देवानंद से कभी मिले आप देवानंद से? हाँ, मैं ये पुरी जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। नहीं, ऐसा हुआ कि मेरे को उनके पड़ोसी जो मेरे गुरु बन गए, धार्मिक गुरु, उनका नाम था हिज होलीनेस स्वामी भक्ति योग स्वामी जी, तो बिल्कुल देवानंद जी लगते थे, तो मेरा तो मिशन 30 साल पहले पूरा हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा तूने कभी बताया नहीं देवानंद को, तो तू जब कहीं में मिला दो। तो क्या हुआ कि बस उसमें पड़ गए, धार्मिक में सेवाएं आने लग गई, तो ये सब चीजें भूल गई। अभी जब रिटायरमेंट के बाद वो भी हमें इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो मैं बिल्कुल वो हो गया, तो मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने देवानंद की किताब पढ़ी और थोड़ी एक्टिंग शुरू की, थोड़ी डायलॉग शुरू किए, तो मैंने फिर से अपने में लाइव डालने की कोशिश।
वेरी अब मैं भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों साथ बहुत वंडरफुल। अब मैं देखिए कॉलेज डेज में वापस जाना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक मैं यू। दो शब्द कहूंगा बहुत आपके अच्छा लिए। लग रहा है बिल्कुल। इट इज लाइक यू नो वॉकिंग डाउन मेमोरी लेन और बिल्कुल Yeah. कॉलेज लाइफ में पहुंच गए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू है। वेरी मच। अब मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले थैंक्स करना चाहूंगा कि इसको बनाने में परवीन जी को मालूम है, हम इनके साथ शेयर करते रहते हैं कि रमा बाम्बरी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और उसके अलावा मेरे को थैंक्स करना है भीष्म जी का। उन्होंने जैसे टाइम मिला तो उन्होंने मेरे को रिमाइंड कराया है ना देवानंद पार्ट 2। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक्स टू कर्नल शर्मा जी जिन्होंने मेरे को हमेशा इनकरेज किया और उनको हम अपना गाइड भी उनको एक्चुअली गाइड मानता हूँ मैं। वेरी गुड। और उसके बाद मेरे को जो मेडले सॉन्ग्स का आइडिया दिया वो परवीन जी ने दिया, क्योंकि जो पहले पार्ट में काफी गाने गा चुका तो मैंने कहा कैसे करूँ। कहता है छोटे 2-2 स्टैंड से ले लो और 4-5 गाने इकट्ठे कर लो। तो थैंक्स टू मैडम परवीन। Thank you for acknowledging that, Bhamri ji. Thank you, so sweet of you. Always. थैंक्स करना चाहता हूँ रश्मि जी का। उन्होंने मेरे को सिखाया 2-4 गानों के बाद कुछ डायलॉग होना चाहिए, 2 गानों के बाद कुछ होना। ये सीक्वेंस बनाने का जो स्टाइल था ये रश्मि जी का था। और मौसम टोटली बदल गया भाभी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या तारीफ करें आपकी। मैं अपनी टॉक को समाप्त करता मोना जी के बिना। प्लीज सुनिए, मोना जी मेरे इतनी बड़ी इंस्पायर। मैं सबसे पहले मैं मोना जी को मिला था, मैं उनको गुरु मान लिया था, तो वो मेरे को इंस्पायर करती रहती हैं। आई सैल्यूट टू मोना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेक्नोलॉजी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी डॉटर बॉम्बे में है, शालिनी मनचंदा। उनके साथ उन्होंने कहा ठीक है मैं डॉटर्स को बुलाती हूँ। इन तीनों ने मिलके, उनकी डॉटर का नाम है, एक का सुहानी, दूसरी का सानिका, इन तीनों ने मिलके हमें मेडले का तरीका सिखाया। जो मेडले वाला तो बहुत बढ़िया। सुहानी ने आपका मौसम प्लेलिस्ट बनाने करा दिया है ना। थोड़ा सा हमने बीच में करी गड़बड़। नहीं रहने दो, सुहानी रहने दो, सुहानी भी रहने दो। अभी last but not the least, thank you very much Ritu ji, you have always inspired me. I भावरी साहब the audiences also please. मैं क्या विदाउट ऑडियंस ऑडियंस का भी हो गई जेलसी शुरू हो गई। ऑडियंस को क्या दो जी पहले, ऑडियंस को भी करो। she is my daughter Sanika on the screen. Very granddaughter. Sanika, you have done a very good job, Sanika. Thank bless you बच्चे, bless you. हेलो सानिका को बुलाना। सानिका और सुहानी अभी बाहर गए हुए हैं तो मैं घर पे थी तो अच्छा। तो आपने सुन लिया। I thank you very much in terms of all Imoa family. जी आपने बहुत अच्छा गाया। It was very nice. और थैंक यू वेरी मच इमोहा फैमिली के मेंबर्स का, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। सब लोग We appreciate you so much. करते रहते हैं। भावरी जी 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए कि आपकी अदाएं, आपका डांस, आवाज माशाल्लाह, इसने बिल्कुल मौसम बदल किया। और जो पार्ट 3 बनाए उसका नाम पार्ट 3 मत रखिए, उसका नाम रखिए जॉनी मेरा नाम, सॉरी भांबरी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम तो देव रंग रहता है, आप रखिए भांबरी मेरा नाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, I think this was मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा सा सब अपने आप को म्यूट कर लें। It's time to end this wonderful evening that we've just had with our very own Dev Sahib. And मैं अब इनको मिस्टर भांबरी जी अभी नहीं बोलूंगी, कल मंडे को वापस I'll be back on track, but अभी इनका नाम देव साहब जी है। So
amazing program, Dev Saad. Sorry, मैंने कहा भामरी जी नहीं बोलूँगी अभी. So amazing program, absolutely, and beautiful songs. And जैसे मैं सबने कहा, जो आप अंदाज लेके, that makes it more interesting and gets everyone swinging to the songs that you had. And जो medley से शुरू करा, and आपको जो ऐसे आप कह रहे, एक डायलॉग के साथ आप बताते गए कुछ ना कुछ, you know, and बीच में करण शर्मा ने भी बोला, मोना आंटी भी आई. So overall the program became so very interesting, not just a scintillating Saturday जहाँ हम सिर्फ musical evening करते हैं, but उस पूरे dialogues के साथ, उस पूरे अंदाज के साथ, उस dancing के साथ. बस unfortunately Zoom में थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम, अगर हम पूरा आपको you know मिस्टर भामरी को पूरा अगर हम देख पाते वहाँ पे, तो it would have been actually like a film being picturized here. So, and Mrs. Bhamri, great to have you singing here with him. And जबरदस्ती normally आप कभी आते नहीं हो, so wonderful. हाँ जी. He insisted कि नहीं थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा. मैं कहती हूँ ना, this is the ideal couple. वहाँ मिसेस भामरी हमेशा इनको encourage करती हैं, support करती हैं बिल्कुल. And कितना as a wife most of the time होता ही कि वाइफ बहुत सपोर्ट करती है हर वीक, बट यहाँ मिस्टर भामरी इतना ज्यादा अपने वाइफ को वो करते हैं कि आप आगे आओ, आप आगे बढ़ो, सिर्फ मुझे मत धक्का मारो, बिल्कुल बैठो, you know, मतलब you don't step behind me, बिल्कुल, you walk step by step with me and not behind me, and that is so beautiful to see always. Beautiful compatibility, and you know, like it is very you know, emotional to see such kind of couples. So beautiful, and I wish you both lots of happiness, and thank you so much. I know everybody had a fantastic evening. You know, I could see everyone enjoying, and जब अपने ही family वाले करते हैं तो उसका charm शायद और ही बढ़ जाता है. You know, we have singers coming in, we have people coming in, but जब अपने जिनसे हम रोज मिलते करते हैं, तो हमारी जो emotions होते हैं वो और ज्यादा बढ़ के आगे आते हैं. मिस्टर भामरी ने बोला कि का मजा ही कुछ और है. So it works both ways. So thank you so much once again, Mr. Bhamri, and we are going to look for the third part 3. Thank you. चाहे वो देवानंद जी का नहीं हो, चाहे वो किसी और का हो, वो I will leave up to you, but in the near future definitely. तो आप अपनी preparation, रितु जी इनको बोल दो, इनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता. वो तो आपका हाथ छोड़ते ही नहीं. थर्ड नहीं करना, ये कह रही है थर्ड नहीं करना. ठीक है, अब देवानंद का पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 1 शुरू करते हैं, द नेक्स्ट वन. ठीक है, हाँ बिल्कुल. मेरे माइंड में शम्मी कपूर है, शम्मी कपूर. नेक्स्ट वाला शम्मी कपूर. स्वर्णा जी की डिमांड है, लोगों को इन्वॉल्व कर. हाँ, अभी सबको इन्वॉल्व करके करेंगे. हाँ नहीं, फिर तो वो बॉलीवुड इवनिंग बन जाएगी ना, फिर तो वो वो तो अलग चल ही रही है. So then it will be as good as that. So this has to be like you know, अलग-अलग, जैसे लास्ट टाइम हमने करण शर्मा को करा था, मोना आंटी को हम बोलते रहते हैं. So maybe you know, so we can work that out. In fact, I already have something in mind. So मतलब as we progress, I will come to that also. But Mr. and Mrs. Bhamri, thank you for this wonderful Thank you Ritu, thank you evening Ritu. with our legendary and evergreen and debonair Dev Sahib, and सारी memories, सारी यादें, सारा romanticism आपने सबके अंदर जगा दिए. So I'm sure all the ladies are going to just dream of Dev Sahib ji and all his अंदाज and everything. And कल का weekend बहुत अच्छा निकलेगा सबका. So I just wanted to ask, your granddaughter was here, right? Yeah. Sanika. Yes. Yes, Sanika. I know your parents are not here. So Sanika, how did you feel about your grandparents performing? I am very proud of my grandfather performing like this in Emoha. He's so proud of himself, and he doesn't get ahead of himself. He's always humble, down to earth. He talks to people so nicely, and he's like a role model to look up to. So thank you, Nanu, for being such a nice person
and being such a nice. Very good. Thank you, Sanika. Thank you, Sanika. मोहा में And मोह हो Sanika, गया I तो hope you वहाँ- are following your Nanu's footsteps, and very shortly we can have you performing here, not as an elder, of course, but as the grandchildren of the elders who are part of our Moha family. Oh, they are very talented. ये बड़ी डांस करते हैं, बहुत अच्छा. Dance, singing also. Singing also, Brother, dance. sister. तो जैसे हमने पहले बीच में करा था, किसी के बच्चे आए थे जिन्होंने पूरा परफॉर्मेंस दिया. We would love to have them also. मोना आंटी के सारे बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं. We had them also. So why not? We would love to have your grandchildren. We would love to have your children performing here. So of course उनका जो talent है वो आप ही हमें बता सकते हैं. But we would be more than happy to have the children of our own family members performing here and coming here with their talent. We could mix 2-3 together or have one particular show. So Sure. Derek Very को good भी देखते हैं आने के लिए, and you know they've always been kind enough to always be here. So similarly, for anyone else also, if you have your children, we would love to have them here on Mo TV and performing here and taking a session. So once again, thank you so much, everyone. Have a wonderful evening. Keep remembering the wonderful songs that you heard, and आपके सारे गामा पे आप सब देवानंद के songs आज शाम को लगा सकते हैं, and continue this evening with Dev Sahib. And I hope you have a lovely weekend tomorrow, and see you all on Monday morning for a physiotherapy show. Then we have a dietitian show, and evening, of course, I see you all. So till then, keep smiling, keep singing, and keep dancing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank very you much. so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.